converting a logical address into physical address is called address binding, and we will study address binding. Okay, so we can write down address binding. So what happen is, let's say this is your CPU. CPU will always generate logical address, and this logical address will be converted into physical address by using memory mapping unit. This memory mapping unit will be consisting of several other softwares, we shall study it, and this physical address will be mapped to RAM. So because RAM can be accessed by using physical addresses only. Now let's understand what this memory mapping unit is. So memory mapping unit consists of compiler, assembler, it also consists of linker, loader. Okay, now why we need this? So compiler, in modern compilers we have compiler as well as assembler and linker, all three are inbuilt together. But if we talk about separately, then compiler is only required to do error checking. It is required to convert code into assembly language. Okay, assembler is required to take the assembly language code and convert into machine code. Assembly code to machine code. Okay, and linker and loader have a very powerful task. So let's understand the linker task first. So let's say you have a program M1 and you have another program M2. Let's say you have call a function ABC here. The function is defined in this M2. So this M1 is a part of M2 only. Why? क्योंकि हमने यहाँ पे ABC फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और हम कॉल कर रहे हैं M1 में, तो हम इसको सेपरेटली कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद लेट्स से हमें इसका कंपाइल कोड मिला CM2 और इसका कंपाइल CM1 और इसका कंपाइल कोड मिला CM2. Now what will happen during compilation only? In modern compilers we have compiler, assembler and linker, all things together. So what will happen? At linking time this function will be called, और जब ये function call होगा तो ये इस वाले एड्रेस पे लिंक होगा. So linker is required to link the external addresses और इसकी एक फाइल बनाएगा. Let us call that executable फाइल. तो ये executable फाइल उसकी बनाएगा. लिंकर का काम है इस फाइल को, इस फाइल के अंदर इस फंक्शन कॉल की जो हमारी डेफिनेशन है उसके साथ लिंक करना. अब लेट्स से यहाँ पे इसका एड्रेस 200 लिखा था, 200 एड्रेस था जो कंपाइलर ने दिया था, और ये मेमोरी में जब मैप हुआ लिंकिंग के टाइम पे ये 400 एड्रेस पे था, तो हमें ये 200 पे तो नहीं मिला, ये 400 पे मिला. तो दिस एड्रेस इज रिलोकेटेबल एड्रेस. रिलोकेटेबल एड्रेस को मतलब ये है कि उसको हम लिंकिंग टाइम पे या डायनेमिक टाइम पे हम इस एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे. इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. पहले लिख लेते हैं मैपिंग लॉजिक यूनिट का. इट कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर, assembler, linker, loader. Okay, or modern compilers also include assemblers and linkers. Object code is the output of whole process which consists of
relocatable address. So this relocatable address is nothing but logical address. ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फंक्शन का एड्रेस था ये वाला, ये यहाँ पे ये 200 था लॉजिकल एड्रेस. तो रिलोकेटेबल एड्रेस इज नथिंग बट लॉजिकल एड्रेस ओनली विच इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस एट द टाइम ऑफ लिंकिंग. ओके, एंड व्हाट विल हैपन, लोडर will load the program into main memory. So loader work is simple, it is fairly simple. Loader will take the executable file from hard disk which is stored by our compilation process in our backing store. So backing store is nothing but this hard disk only. So we also call hard disk as backing store or persistent store. Okay, so loader will load the program from program into main memory from hard disk. ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं why we need logical address and physical address both, why not physical address only. हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि ये हमारा CPU है और इस CPU ने डायरेक्टली एक फिजिकल एड्रेस जनरेट किया और इस फिजिकल एड्रेस को हमने रैम में मैप कर दिया. ये सिंपल है, क्यों मेमोरी मैपिंग यूनिट को बीच में डाला या इतने सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व किया. सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स. अगर सीपीयू फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो क्या होगा, कंपाइलेशन टाइम में हर एक प्रोसेस को फिजिकल एड्रेस मिलेगा, कंपाइल टाइम पे या लोड टाइम पे. सो व्हाट आई मीन इज इफ सीपीयू जनरेट फिजिकल एड्रेस directly gives physical address, then each process is given physical address during compile time और load time. लोड टाइम पे या कंपाइल टाइम पे ही फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा. तो इससे नुकसान क्या होगा, सपोज आपके पास एक P1 प्रोसेस था जिसको एड्रेस असाइन हुआ 250 से लेके लेट से 550 तक. एक P2 प्रोसेस था जिसको असाइन हुआ 450 से लेके लेट से 900 तक. ये हमारे एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं, ठीक है, रैम के. अगर ये एड्रेस असाइन हुए तो ये देखो रैम के अंदर सपोज ये हमारे पास 250 था, ये 550 था, ये लेट से यहाँ पे 450 है और ये 900 है. अब जब P1 रैम के अंदर है तो ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है. अब अगर हम P2 को रैम के अंदर डालना चाहते हैं तो हमारे पास में स्पेस नहीं है क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है. यहाँ नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है इसकी वजह से हम P1 के रहते हुए P2 को रैम के अंदर नहीं पुट कर सकते. सो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे एक टाइम पे दो प्रोसेस नहीं चल पा रहे हैं. सो विच मीन्स लेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. सो वी कैन राइट डाउन इफ P1 इज इनसाइड द CPU we cannot run P2. Okay, or if P2 is inside the CPU then we cannot run P1, and the after effect of this is it will degrade or it will reduce the degree of multi-programming. Degree of multi-programming means number of processes running inside a RAM at a time. Okay, so अगर हम दोनों को एक साथ चला पाते तो एक ही टाइम पे P1 और P2 दोनों चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम एक साथ नहीं चला पा रहे तो एक टाइम पे एक ही चल पा रहा है. तो डिग्रेडेशन ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये प्रॉब्लम हो गई. लेट्स से अगर हमने फिजिकल एड्रेस ना जनरेट करके लॉजिकल एड्रेस जनरेट किए होते, अब इनको मान लेते हैं कि ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं, तो क्या होगा, ये कंपाइल टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे या लोड टाइम पे कन्वर्ट होंगे फिजिकल एड्रेस में. अब रैम के पास में ये लेट से एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो इसने इसको क्या किया, इसके अंदर कुछ थ्रेशोल्ड या एक्स
ऐड करके इसको 300 बना दिया और इसको उसी हिसाब से लेट से 600 बना दिया। अब 300 से 600 पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड हो गया, तो हमने क्या किया, इस वाले एड्रेस के अंदर थ्रेशोल्ड 50 नहीं ऐड किया, इसके अंदर हमने लेट से ऐड कर दिया इस बार 200। तो ये क्या होगा, ये हमारा एड्रेस बन जाएगा 650, और 650 पे ये तभी 200 ऐड करेगा जब हमारे पास रैम के अंदर 650 से एड्रेस फ्री हो, मेमोरी फ्री हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे P1 और P2 दोनों एक साथ चल सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट किया। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे पास लेट से हमने P1 को 400 से 600 भी चला दिया, P2 को लेट से हमने 600 से 800 चला भी दिया, ये कर भी दिया कि दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सो 400 से 600 तक यहाँ पे P1 डाला और फिर 600 से 800 तक हमने यहाँ पे P2 डाल दिया। अब रन टाइम पे P1 को लेट से 100 एड्रेसेस और चाहिए, तो अब यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस है नहीं ना इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ टाइट फिजिकल एड्रेसेस, यहाँ पे ये हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है, जिसकी वजह से हम मेमोरी को इंक्रीज करना चाहें एग्जीक्यूशन टाइम पे तो इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमने लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किए होते तो देखो यहाँ पे हमने कम से कम थोड़ा सा गैप बीच में छोड़ा हुआ है, जिस गैप की वजह से हम इसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, रन टाइम पे उसकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। सो वी कैन राइट इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज मेमोरी एट रन टाइम। डिफिकल्ट टू इंक्रीज मेमोरी, ये मेमोरी इंक्रीज करना डिफिकल्ट हो जाता है। और वी कैन ऑल्सो राइट दैट डिफिकल्टी इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक टाइम पे या रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमने जो एड्रेसेस दिए हैं ये तो स्टैटिक मेमोरी हो गई, अब डायनेमिक मेमोरी में P1 को लेट से एक मैलॉक करके एरे चाहिए साइज ऑफ लेट से 100, तो वो मेमोरी कहाँ से लाएं, यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है ना, तो वो हीप ही नहीं बना पाएगा अपनी। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेट से आपने P1 को रन किया 400 से 600 और यहाँ पे ये रन कर रहे हो आप P1 400 से 600, थोड़ी देर बाद इसका काम कंप्लीट हुआ और आपने इसको स्वैप आउट कर दिया, स्वैप आउट कर दिया आपने लेट से इसको हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, स्वैप आउट करने के बाद आपने यहां से P1 स्वैप आउट करने के बाद P2 को स्वैप इन किया, स्वैप इन करने के बाद ये एरिया तो खाली हो गया था क्योंकि स्वैप आउट कर दिया P1, और P2 जो आया वो आ गया 500 से 900। ठीक है, तो ये जो स्पेस था अभी तो खाली था क्योंकि P1 को स्वैप आउट कर दिया था, अब फिर से भर गया। लेकिन अगर मैं वापस P1 को स्वैप इन करना चाहूं तो नहीं कर सकता, बिकॉज उसको भी 400 से 600 चाहिए और ये वाला एरिया खाली नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू स्वैप इन स्वैप आउट और रीलोकेट, डिफिकल्ट टू रीलोकेट और swap in and swap out। ठीक है, because each process have same memory partition requirement which may not be available every time, each process will have to get same memory partition every time and which may not be available. Okay, so these all are problems if we assign physical addresses directly. So we will learn address binding, how to convert an logical address into physical address. So address binding takes place. Okay, so we will do address binding of converting a logical address into physical address by memory mapping
unit, and this is done by using these many things: compilers, assemblers, linkers, and loaders. So address binding is of three types. So what is address binding? Process of converting logical address into physical address. Okay, and it is of three types. First one is compile time binding. What is compile time binding? In compile time binding, compiler assigns physical address. So CPU से हम डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं करा रहे हैं, कंपाइलर असाइन फिजिकल एड्रेस टू मेमोरी लोकेशन. ओके, द सेकेंड वन इज लोड टाइम बाइंडिंग. सिंपल है. लोड टाइम बाइंडिंग में कंपाइलर लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करेगा, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करेगा, लेकिन लोडर फिजिकल एड्रेस को जनरेट करेगा ड्यूरिंग लोडिंग अ प्रोसेस. ठीक है. कंपाइलर असाइंस लॉजिकल एड्रेस बट लोडर असाइंस फिजिकल एड्रेस ड्यूरिंग loading a process. And the third one is execution time binding. Here compiler and loader both will generate logical address. Compiler and loader assign logical address during runtime. So execution time पे, during runtime पे logical address will be converted into physical address using सम हार्डवेयर. ठीक है. और ये कैसे होता है, इसका एक सिंपलिस्टिक फॉर्म देखते हैं. सपोज करो हमारे पास ये एक सीपीयू है. सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया. सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, क्योंकि अगर फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हमने देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अब हमारे पास एक लेट से ये एक कंपैरेटर है, यहाँ पे हार्डवेयर है. इफ लॉजिकल एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस LA इज लेस देन इक्वल टू आवर लिमिट. लिमिट रजिस्टर के अंदर वैल्यू क्या होगी? लिमिट रजिस्टर मतलब जैसे P1 है, P1 100 से 400 तक चलना चाहता है, इसको एड्रेस स्पेस की रिक्वायरमेंट है 100 से 400, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 300, विच इज 400 लास्ट एड्रेस माइनस फर्स्ट एड्रेस. दिस इज फर्स्ट एड्रेस इज एक्चुअली बेस एड्रेस, ये हमारा बेस एड्रेस है. तो लिमिट क्या होगी? लास्ट एड्रेस माइनस बेस एड्रेस इज आवर लिमिट. तो अगर हमारी लिमिट लेस देन लॉजिकल एड्रेस है तो हम आगे जाएंगे. लेस देन मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आप 301 एक्सेस करना चाहो तो हमारी लिमिट से बाहर है, हम उसको एड्रेस को एक्सेस ही नहीं करेंगे. उससे लेस देन इक्वल टू यानी कि 0 से लेके 300 या 299 तक हम एक्सेस कर सकते हैं. तो लिमिट से लेस है तो हम आगे जाएंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे अपना बेस एड्रेस. ये बेस एड्रेस जो हमारा है, तो यहाँ पे बेस रजिस्टर होता है एक, और इस बेस रजिस्टर को ही हम बोलते हैं रिलोकेशन रजिस्टर. बेस रजिस्टर और रिलोकेशन रजिस्टर. और ये ऐड होने के बाद हमारा बनता है फिजिकल एड्रेस, और ये फिजिकल एड्रेस हमारा मेमोरी के अंदर मैप हो जाएगा. अगर ये नो में आएगा यानी कि हम 301 एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी लिमिट से बाहर है, क्योंकि बेस एड्रेस 100 प्लस 301 इज 401 विच इज आउट ऑफ आवर मेमोरी रेंज. तो क्या आना चाहिए? सेगमेंटेशन फॉल्ट. सेगमेंटेशन फॉल्ट. तो हमारे पास यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, लिमिट रजिस्टर, बेस रजिस्टर, और यहाँ पे एक कंपैरेटर है, एक एडर है. तो इनकी हेल्प से हम, ये हार्डवेयर की हेल्प से हम रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट एड्रेस बाइंडिंग. थैंक यू.